Good morning, my dear friends. Today we are going to discuss about class 10 footprint without food. Footprint without food. This subject, footprint without food, is a supplementary reader book in English. This is nothing but a supplementary reader in English. This subject or this book is studied by CBSE and Gujarat State English Board. Both are carrying the same books. Okay, we will discuss each and every chapter sequentially. Friends, the first chapter of footprint without food. Chapter number 1 is a trump of surgery. A trump of surgery. It is nothing but a story. Here, TRIUMPH, trump means victory. Okay, surgery means it is nothing but any type of surgical events, means it is nothing but a operation. Okay, कोई ऑपरेशन से हमें सक्सेस मिला उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये एक कहानी है जिसमें 3 पर्सन के बारे में बोला गया है. एक वेटनरी डॉक्टर है, उनके नाम है डॉक्टर मिस हैरियट और मिस्टर हैरियट, और एक लेडी है जो लेडी बहुत रिच है. ऐसे देखने के लिए जाओ तो वो बहुत धनी है, रिच है. ओके, एंड उसके पास उनके नाम है मिस पैम्पलिन, और उनका एक डॉग है, उसका नाम है ट्रिकी. ओके, दिस स्टोरी इज रिटन बाय जेम्स हैरियट. दिस स्टोरी इज रिटन बाय जेम्स हैरियट. ओके, we will discuss each and every steps according on our lesson. My dear students, this is the PPT of footprint where we are going to discuss about the story of our first chapter of footprint at a trump of surgery. Here the writer's name is James Herriot, and the first slide is, I was really worried about Tricky's this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mysterious, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a blotted sausage with a leg at each corner. I was means here again I am repeating, I was means Mr. Herriot. Mr. Herriot was really worried मतलब चिंतित, टेंशन में आ गए about Tricky this time. जब वो ट्रिकी को इस बार देखे तो ये रियली टेंशन में आ गए. I had pulled up my car. मैं मेरे कार को वहाँ बंद रखा. यहाँ पुल्ड मतलब खींचना नहीं, वो रास्ते में जा रहे होंगे, ट्रिकी को देख के उनके कार वो बंद की. I saw him in the street with his mysterious. यहाँ मैं रेड इंक में लिखी हूँ MISTERES. Mysterious means a woman in a position of authority or control. A woman जो वो डॉग के लेडी ओनर है. ओके, एंड आई वॉज शॉक्ड. उस समय में शॉक हो गया मतलब टेंशन में आ गया. ओके, देख के. इट इज अपियरेंस मीन उसके दिखावट. किसके? ट्रिकी के, कुत्ते के दिखावट देख के मैं थोड़ा टेंशन में आ गया. कौन? मैं मतलब यहाँ मिस्टर हैरियट बोल रहे. नरेटर मतलब जो ये कहानी को लिखे, नरेट कर रहे. ही हैड बिकम ह्यूजली फेट. ह्यूजली मतलब बहुत ज़्यादा फेट हो गए थे, मोटा हो गए थे. लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज. ब्लॉटेड मतलब बड़ा अमाउंट में. एक्सेसिव इन साइज और अमाउंट्स. सॉसेज on the left side I have drawn already what is sauces. Okay, on the right side there is a diagram. Here Miss Pampering and Mr. Harriet both are talking with each other, and this is nothing but a sauces. This is a blotted sauces with a leg at each corner. The leg of the Tricky was looking like just a sauces. It just looks like a sausage. Sausage is a item of food
cylindrical length of mince, cod or other meat encased in a skin. Typically sold raw to be grilled or fried before eating. Means whatever the cylindrical shape of a bun or bun material, inside there the filling is meat and it is grilled or fried, that is called as sausage. The leg of the foreleg of the turkey was look like as same as sausage. His eyes bloodshot and Rheum started straight ahead and his tongue rolled from his jaw. His eyes मतलब ट्रिकी के eyes bloodshot मतलब inflamed, उसकी tinged with मतलब tinged with blood, चारों बाजू कैसे बीमारी हो जाते तो आँख के चारों बाजू blood जम जाते हैं वैसे. Typically as a result of tiredness. This is nothing but a result of tiredness. And rheum means watery. ना बहुत बार क्या होता है आँख से नाक से पानी निकलता है, वैसे उस समय ट्रिकी के आईज से और मुंह से पानी निकल रहा था. Okay, that is called as rheum. R-H-E-U-M-Y. Stared straight ahead and has tongue lolled from his jaw. उसके जीवे वो बाहर निकला हुआ था. Okay? अब देखिए यहाँ फिगर में आप देखिए यहाँ क्या है, देखो वो बातें कर रहे, वो जो लेडी ट्रिकी को पकड़े हैं, जो डॉग को पकड़े हैं, वो लेडी है. she is the owner of the dog Tricky, and in front of them Mr. Harriet is standing and he is surprised to see the appearance of or saw the appearance of the Tricky. Okay, Tricky saw that okay, his appearance is just look like a fat ball. Okay, next is Miss Pampley hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Now Miss Pampley क्या करे, hesitant to explain. Now quickly बोल रहे कुछ. Be quick to do something. Be quick to do something. Means he is really worried, and he is explained to Mr. Harriet. He was so listless. Listless means lacking of energy or enthusiasm. Means he is feeling weak. Who? Here he means Tricky. Tricky was so listless. Mr. Harriet, he seemed to have no energy. Seemed वो दिखाई दे रहा है कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, no energy, कोई एनर्जी नहीं. I thought he must be suffering from malnutrition. I thought मतलब मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, he must be suffering from malnutrition. मुझे लगता है कि वो उसको lack of nutrition, MAL, malnutrition means lack of proper nutrition means उसको जितना ज़रूरत है उससे कम nutrition उसके पास है. So I have been giving him some little extras between meals to develop or to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks. Now I have been Mrs. Pampley, the owner of the Tricky, have been giving him मतलब दे रहे थे little extra food between meals as it is meals दे रहे थे, ब्रेकफास्ट, सुबह के लंच, रात के डिनर. उस बीच में ये क्या करते थे ना, कुछ माल्ट देते थे, some malt means it may be some types of pedigree means some types of oats, it may be mixed with Horlicks or mixed with milk is providing that. And cod liver oil. Cod liver means cod is nothing but a one type of fish. It's liver oil, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. To make him good sleep. For a good sleep of Tricky, the owner, the lady, has
always preferred Horlicks, a bowl of Horlicks at night. And nothing much really, इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे मिस पैम्पली मिस्टर हैरियट को एक्सप्लेन कर रहे थे. At that same time, and did Mr. Harriet ask some question? That one is narrator asking question. And did you cut down on the sweet things as I told you? Mr. Harriet asking that. Did you cut down on the sweet things as I told you? मैं आपको बोला था कि मिठाई बंद करने के लिए, तो आप कम किए. Oh, I did for a bit. Oh, I did for a bit. Means this is the reply of Miss Pamela. But he seemed to be so weak, I had to relent. जब मैं इसे बंद किया, जब मैं उसको थोड़ा बंद किया, थोड़ा a bit means थोड़ा. He seemed, वो दिखाई दिया, यहाँ ही मतलब tricky दिखाई दिया, बहुत weak. And I had to relent means become less severe or intense. मुझसे सहन नहीं होता है, तो मैं सहन नहीं कर पाती. He does love cream cake and chocolate so. उसको क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है. I can't bear to refuse him. मैं उसको मना भी नहीं कर सकता. Can't refuse मतलब मना नहीं कर सकता. I looked down again at the little dog. Here I means Harriet. Harriet looked down again at the little dog. That was the trouble means here that was means tricky. Tricky was the trouble. Harriet is saying that Tricky was in trouble. Tricky's only fault was greed. Tricky के एक ही fault था, वो लोभी था, greed, लोभी. He had never been known to refuse food. He means tricky. Tricky had never been known to refuse food. वो कभी खाने को मना नहीं करता था. He could take a meal at any hour of the day or night. रात को हो या दिन को कोई भी समय उसको खाना दो तो टेकल कर सकता था. यहाँ टेकल मीन्स वो खा लेता था, मना नहीं करता था. He is the food lover. Tricky was the food lover. And I wondered about all the things Miss Pamper had not mentioned. Miss Pamper बहुत वस्तु बोले नहीं थे, but Dr. Harriet वो समझ गए थे. इसलिए वो पूछे, Are you giving him plenty of exercise? This question was asked by Mr. Harriet. Are you giving him plenty of exercise? आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दे रहे हो क्या? जितना जरूरी है उतना एक्सरसाइज तो हमें भी करना चाहिए. इसीलिए डॉक्टर हैरियट पूछ रहे हैं, आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे हो क्या? Well, he has his little walk with me, as you can see. यहाँ this is the reply of Mr. Harriet's question given by Miss Pam. Well, he has his little walks. वो थोड़ा चलता है मेरे साथ with me, as you can see, जैसे आप देख रहे हो. But Hodgkin, the gardener, has been down with long work, so there has been no ring throwing lately. मतलब the gardener जब इसे ले जाते हैं, pain in the muscles, joint में जो pain होता है lower back में, उसको pain है, इसीलिए ये क्या करते हैं? There has been no ring throwing lately. Ring throw करके उसको practice करवाते थे, वो भी बंद है फिलहाल क्योंकि उसके muscles में pain है. Next, I try to sound severe. Here, I means Mr. Harriet. Mr. Harriet angry हो गए, गुस्सा हो गए, बहुत गुस्से में बोल रहे. I try to sound severe. बोल रहे कि मेरे आवाज़ आपको unhappy लगता होगा, but मैं दुखी हूँ. I try to sound severe. यहाँ severe मतलब serious. मैं seriously बोल रही हूँ. Now I really mean this. मैं जो बोल रहा हूँ वो seriously मैं मतलब उसके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ. मैं seriously गुस्सा हूँ.
ऐसे बोल रहे हैं कौन? मिस्टर हैरियट। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप उसको खाने का कटौती नहीं करोगे, खाने कम नहीं करोगे और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो जल्दी से जल्दी बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट मीन्स आप आपके हार्ट को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सहना पड़ेगा आपको। कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। कीप हिम मीन्स उसको आप दीजिए, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट दीजिए, बहुत ज़्यादा आप उसको डाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मिस पैम्परी रन हर हैंड्स। ओ आई विल मिस्टर हैरियट। मिस पैम्परी रन WRUNG रन हर हैंड मीन्स हवा में हाथ हिला के बोले ओ आई विल मतलब हाँ मैं करूँगा। मिस्टर हैरियट मैं करूँगा। आई एम श्योर यू आर राइट। मिस्टर हैरियट आप सही हो, मुझे पता है, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, बट ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफिकल्ट। She sat her head down along the road as if determined to put the new rigging into practice immediately. She sat her head down. वो अपनी मुंह नीचे करके रास्ते की तरफ लुक आउट करके अने मन में ही मन कुछ सोच रहे थे, नक्की कर रहे थे कि मुझे ट्रिकी को सही करना है कुछ भी करके। न्यू रिगमिंग मीन्स here a system or order of doing things. It is a type of practice. Okay. I watched their progress with growing concern. I am watching here their progress. Tricky was tottering along in his little tweed coat. Tricky was tottering. Tottering means move in a feeble or unsteady way. सही से वो चल नहीं सकता था, इसलिए वो घसटते घसटते हुए जा रहा था। Along his little tweed coat. Tweed means rough surface woolen cloth. Woolen cloth है लेकिन घसटते घसटते गंदा हो गया था पेट के नीचे। ओके, जैसे मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई हूँ, मैं फिर से फर्स्ट स्लाइड को जा रही हूँ। देखिए उसके ये पहना है एक वूलन क्लॉथ और उसके नीचे के जो स्टोमक के नीचे पूरा रास्ते में टच कर रहे हैं, इस वजह से क्या होता है नीचे के पोर्शन गंदा हो जाता है। पहले जब ट्रिकी को लाया गया था, या जब ट्रिकी सही हो जाएगा तब वो कैसे होगा हम बाद में देखेंगे। Again I am repeating. I watched the progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. Twittering means गंदे तरीके से चलना। Along in his tweed coat, वूलन से बना हुआ एक कोट पहना था और वो बहुत गंदा हो गया था नीचे के साइड से। He had a whole wardrobe of those coats. उसके पास एक wardrobe था जो भरा हुआ था इस तरह के different colorful and varieties of coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. Means ट्रिकी के पास विंटर में पहनने के लिए क्लॉथ्स, समर में पहनने के लिए क्लॉथ्स और रेनी सीजन में रेनकोट, ये सब भरा हुआ था वो वार्डरोब में। वार्डरोब मीन्स ए लार्ज और टॉल कपबोर्ड और रेसेस इन विच क्लॉथ्स में बी हैंग और स्टोर। हियर द क्लॉथ्स में बी हैंग और में बी स्टोर। He struggled on dropping in his hands. He means the tricky. Tricky struggled on dropping in his harness. Harness means the belt or the strip or the fitting of the belt. Okay. I thought it would be long before I heard from Miss Pamper. I thought मैं बहुत दिन से मिस पैम्परी के पास से सुन रही हूँ कि उनके डॉग जो है वो ट्रिकी जो है वो थोड़ा इस तरह से रफली चलता है और थोड़ा बीमार है, थोड़ा वीक है, ऐसे वो सोचने लगे। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। कुछ ही दिनों के अंदर वो लास्ट सेंटेंस में वो सोच रहे थे कि
आई हियर फ्रॉम मिस पैम्परी, कुछ पॉजिटिव पैम्परिंग उनको बोले ट्रीटमेंट करने के लिए, वो वही सोचे थे. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर, कुछ समय के अंदर मिस पैम्परी से मिस्टर हैरियट को कॉल आया. मिस्टर हैरियट को कॉल आया जिससे मिस पैम्परी वॉज डिस्ट्रॉयड. मिस पैम्परी वॉज डिस्ट्रॉयड मीन्स वेरी वॉरिड एंड अपसेट, वो बहुत चिंतित थे यानी दुखी भी थे. वो क्या बोले, मिस पैम्परी अब बोल रहे मिस्टर हैरियट को, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. रेफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, मीन्स रेफ्यूज मतलब मना कर रहे हैं. इवन हिज फेवरेट डिशेस मतलब वो अपने बेस्ट डिशेस जो उसको फेवरेट होता है वो भी नहीं खाना, मीन्स वो चॉकलेट केक्स वो सब भी नहीं खाना पसंद कर रहा था, चॉकलेट और केक्स. एंड बिसाइड he had bouts of vomitings. Bouts of vomitings means a short period of intense activity of a specified kind, means in the little time interval he is vomiting, he is take outside some food material inside his mouth. He spent all his time laying on a rug up bench. He spent, here he means tricky. Tricky spent मतलब बिता रहा है. All his time laying on a rug. Rug means a floor covering, means a mat. Okay, a carpet. Panting means he is breathing with short interval or quick breath. Out of breath means वो ब्रीथ लेने के टाइम थक जा रहा था और बहुत कम टाइम के गैप में वो ब्रीथ ले रहा था. Did not want to go for walk, वो चलने जाने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं था. Did not want to do anything, वो कुछ नहीं करना चाहता था, खाली पड़े रहता था कारपेट के ऊपर और रग के ऊपर. I had made my plans in advance. Here I means Mr. Harriet. Mr. Harriet had made his, here my plans means Mr. Harriet has made some plans, means Mr. Harriet had made his plan in advance, पहले से ही प्लान करके रखे थे. The only way was to get Tricky out of the house for a period. For sometimes Tricky must be out of his home. Okay, I suggested that he be hospitalized for about fortnight to be kept under observation. Here I means Mr. Harriet. Mr. Harriet suggested that Tricky should be hospitalized for about fortnight. Fortnight means a period of 2 weeks, means minimum 15 days. Minimum 15 days. He should be under the observation of doctor and he should be hospitalized. Okay. The poor lady almost swam. Here the poor means garib nahi. The poor means the innocent lady. Almost swam means totally loss of his conscience. वो पूरा सुन हो गए, वो टेंशन में आ गए कि वो कैसे रहेंगे एक दूसरे को छोड़ के. Tempry and Tricky. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. She was sure he would pine and die. ना वो श्योर हो गए थे कि अगर वो मुझे डेली नहीं देखेगा तो मुझे याद करते करते मर जाएगा. पाइन मतलब याद करते करते, डाई मतलब मर जाए. कौन? Here he means Tricky. But I took a firm line. लेकिन मैं strictly एक नक्की कर दिया था, डिसीजन ले लिया था. Tricky was very ill. इस समय Tricky बहुत बीमार था. And this was the only way to save him. अभी समय है जब ये ट्रिकी को सही कर सकते हैं. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Miss Pampry's willings. I marched out to the car carrying the little dog. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. Here I means Mr. Harriet. March means
मतलब धीरे से, वॉक स्लोली। पहले एक्चुअली क्या है कि मिसेस पैम्फ्री was crying loudly, willing, that's why he quickly packed the dog in a blanket and marched towards car. Then the entire staff was reused and made rush in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. Okay, means the entire staff here. The entire staff means we know that Miss Tampry is a rich lady. So in his home there is so many servants. So that entire staff was rushed, means stop of sleeping and made rushed. Maid means it is nothing but a female domestic servant who is rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, means ट्रिकी के दिन के बेड, नाइट के बेड सब अलग था. उसके फेवरेट कुशन था, टॉय था, रबर रिंग था, and ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, या सुपर मीन्स नाइट डिनर, one type of light and informal one. Okay, realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. मुझे पता था कि मेरे कार कभी इतने सारा सामान नहीं उठा सकता है. Then also I carried on that all those things to care the Tricky. As I moved off, Miss Pamper with a despairing cry. As I moved off, here as I moved means जब मिस्टर हैरियट वहाँ से मूव कर रहे थे, मिस पैम्प्री विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, मिस कुछ जैसे हमसे कुछ जुदा हो जा रहे या हम कुछ खो देते हैं हमारे से इम्पोर्टेंट वस्तु, तब हम चिल्ला चिल्ला के रोते. लाइक दैट मिस पैम्प्री वॉज ऑल्सो क्राइंग एट दैट टाइम. थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो. न थ्रू फेंके, क्या एक कोट, आर्मफुल ऑफ कोट वो विंडो से अंदर फेंके. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबॉडी वॉज इन टीयर. जैसे हमारा गली होते हैं, गली के एंडिंग में टर्न पॉइंट होते हैं, वैसे वहाँ टर्निंग जब तक मिस्टर हैरियट का टर्न नहीं किए थे तब तक वो देख रहे थे मिरर से. किसको? नाउ द फैमिली ऑफ ट्रिकी. Everyone, the entire staff, the maid, Mrs. Pamprey, all are crying at that time. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. सब लोग रो रहे थे. Out of the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. On the road means जब ये रास्ते में जा रहे थे, I glanced, मतलब मैं एक टेरेबल जैसे मतलब हरीड लुक दिया. टेक ए ब्रीफ और हरीड लुक, उसको देखे, नज़र डाले. एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, एक पैथेटिक लिटिल एनिमल था. जो कौन था? वो है ट्रिकी, जो क्या कर रहा था? गैस्पिंग कर रहा था ऑन द सीट बाय माई साइड. और वो बहुत स्मेल था, इसलिए वो उसको पैथेटिक लुक दी. I patted the head and Tricky made a brave effort to wig his tail. मैं उसके हेयर को, मतलब उसके माथे को क्या किया? थोड़ा लाड़ किया मेरे हाथ से. तब वो साहस किया कि उसके टेल थोड़ा हिलाए. Poor old lady, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. ना poor old lady, लेडी के लेडी ही लिखा है, मतलब वहाँ वो लेड का बोल के वॉइस साइलेंट में है. पूर ओल्ड लेडी मतलब यहाँ इनोसेंट लेडी. आप ट्रिकी को बहुत प्यार करते हो, लेकिन ट्रिकी के ऊपर सख्त होने में आप थोड़ा घबराते हो, लेकिन मैं ट्रिकी को क्योर करके दिखाऊंगा. कौन बोल रहे हैं? मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं. मिस्टर हैरियट हैज़ ए कॉन्फिडेंस टू बिल्ड टू क्योर द dog or the tricky very soon. At that surgery means hospital में, the household dogs surgered round me. The household dog मतलब बहुत सारे कुत्ते आए थे वहाँ ट्रीटमेंट के लिए, या बहुत सारे कुत्ते थे. वेटनरी ऑफिस में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो वहाँ सर्जर मीन्स मूव सडनली, पावरफुली, और फॉरवर्ड और अपवर्ड. लोगों क्या करते, वो कुत्ते आजू बाजू मंडराने लगे.
Tricky looked down at the noisy pig with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. जब बाकी कुत्ते ही मतलब हाँ वहाँ उनके चारों बाजू घूम के आवाज़ कर रहे थे, उसी समय ट्रिकी क्या किया, आवाज़ सुन के थोड़ा नीचे की तरफ देखा ना, नीचे की तरफ देख के क्या हुआ, वो लोग के नॉइज़ से वो डिस्टर्ब हो रहा था, थोड़ा एक डल आइस में वो देखा, बट वो कुछ कर नहीं सकता था। एट दैट टाइम मिस्टर हैरियट पुट डाउन, मिस्टर हैरियट उसको नीचे रखे, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट में वो मोशनलेस मतलब नॉट मूविंग, स्टेशनरी, स्टडी स्टेट में वो था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, द अदर्स डॉग बाकी जो कुत्ते थे आफ्टर स्निपिंग मतलब एयर अडेबल, उसके आजू बाजू मंडराने लगे, थोड़ा नॉइज़ करने लगे, उसको खेलने की प्रयत्न किए, बट वो तो मूव ही नहीं कर रहा था ट्रिकी। कुछ समय करने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। क्यों? डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, वो लोग डिसाइड किए कि उनको ऐसे लगा कि ये जो ट्रिकी है अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसको इग्नोर करना चाहिए, बोल के वो लोग वहाँ से निकल गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन दैट द अदर्स डॉग स्लेप्ट, जहाँ बाकी कुत्ते सो रहे थे वहाँ के बाजू में मैं एक वार्म लूज बॉक्स से उसके लिए बेड बनाया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैं उसके ऊपर नज़र रखा, कुछ खाने नहीं दिया। चलो देखते हैं। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कोई खाना नहीं दिए और लेकिन पानी बहुत सारे दिए। जैसे हम भी बीमार होते डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर पहले सजेस्ट करते कि प्लेंटी ऑफ पानी, बहुत ज़्यादा पानी पिए, लेकिन खाना थोड़ा हल्की फुल्की लीजिए। लेकिन यहाँ मिस्टर हैरियट उसको खाना कम कर दिए क्योंकि वो खाने की बहुत लोभी था और बहुत फेट हो गया था, इसी वजह से उसको फेट डिक्रीज करने के लिए क्या किए, खाना नहीं दिए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर सप्लाई किया गया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding. दूसरे दिन, पहले दिन तो कुछ नहीं, दूसरे दिन उसकी एक्टिविटी थोड़ी थी, वो कुछ इंटरेस्ट ले रहा था कि आजू बाजू कौन आ रहे कौन नहीं जा रहे, मतलब जस्ट नज़र दे रहा था। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द वार्ड। ऑन द थर्ड डे वो क्या है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे नॉइज़ करना और धीरे धीरे भौंकना चालू किया था, लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी पेन थी। वो जो आवाज़ कर रहा था वहाँ से पता चल रहा था कि वो अनहैप्पी थे आवाज़ से, लेकिन आवाज़ कर रहा था। When I opened the door, मैं जब डोर ओपन किया, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joy, the greyhound and his friend. When I opened the door, here when I means here Mr. Harriet opened the door. कहाँ के? हॉस्पिटल के। ट्रिकी ट्रॉटेड मतलब दौड़ के आए, बहुत ज़्यादा स्पीड या बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, मीडियम्स में आए। वॉज इमीडिएटली गनॉल्फ्ड बाय जॉय, खुशी उनके चारों बाजू घूमने लगे और उनको कवर करने लगे। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, बाकी सारे दोस्तों के साथ वो घुल मिल गए थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्ट हिम, कुछ समय मिस्टर हैरियट के चारों बाजू घूमने लगे। फिर द डॉग्स, जो बाकी के कुत्ते थे, मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, बाकी के कुत्ते गार्डन के तरफ थोड़े जाने लगे, इसलिए ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके साथ उनके तरफ जाने लगा। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, ट्रिकी फॉलोड तो क्या, बट उसके फेट इतना ज़्यादा था कि वो चल नहीं पा रहा था, तब भी वो क्या कर रहा था, घसटते ही जा रहा था, रोल कर रहा था अपना पूरा शरीर को उसके साथ। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, फीडिंग मतलब खाने के समय मैं वहाँ खड़ा था, प्रेजेंट, आई मीन्स हियर मिस्टर हैरियट। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन sloped the food into the bowl. Sloped means spill or flow over the edge of a container, typically as a result of careless handling. जैसे वो डाल रहे थे खाना तो बाउल के ऊपर आ जा रहा था। ओके, there was the usual hand long rush followed by the sound of high speed eating.
इतने स्पीड में कुत्ते खा रहे थे जिससे आवाज़ आ रहा था। क्यों? उनके जो खाना है वो मिल्क मतलब वाटरी होती है, लिक्विड होती है, तो वो टंग से खाते हैं जिससे वो क्या होता है, उनकी आवाज़ ज़्यादा फॉर्मेशन होती है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल behind the other he was liable to have some competition for the last part of his meal। ना सब लोग को इतना पता था अगर वो जल्दी से जल्दी नहीं खाएंगे तो उनके जो हिस्से का खाना किसी और को मिल जाएगा, बाकी क्या होगा, लास्ट मील के लिए उनको कंपटीशन करना पड़ेगा। When they had finished, जब वो फिनिश कर दिए, ट्रिकी took a walk round the shining bowl। ट्रिकी क्या क्या बाउल के शाइनिंग बाउल के चारों तरफ एक राउंड मारा। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। लिकिंग LICKING, लिकिंग मीन्स जो जीभ से वो बाउल को साफ करने लगा। साफ मतलब थोड़ा भी जो खाना बचा होगा उसको वो चाटने लगा। पास द टंग ओवर इन ऑर्डर टू टेस्ट मॉइस्चर और क्लीन इट, बार बार साफ करने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। दूसरे दिन क्या हुआ कि ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ रखा गया। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। वो क्या किया, टिपिकली उसको खींचा या उससे दूर कर दिया। वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन से उसके प्रोग्रेस जल्दी से देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन के बाद वहाँ से उसके प्रोग्रेस चालू हो गया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं दिया गया था, कुछ नहीं, बट वो बाकी कुत्तों के साथ दौड़ के उसके अंदर सेहत के अंदर डेवलपमेंट आया। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रैमेज, जॉइनिंग वो उससे जॉइन होने से उसका क्या हुआ, फ्रेंडली स्क्रैमेज, जो कंफ्यूज हुआ और बाकी कुत्ते के साथ झगड़ा भी कर रहा था। He discovered the joy of being bowled over। वो बार बार खुश होता था, खेलता था, झगड़ता था। Trampled on and squashed every few minutes। थ्रेड को काट रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, नाखून मार रहा था, इस तरह से वो एक्टिविटीज कर रहा था। He became an expected member of the gang। उसको एक्सेप्ट कर दिए थे मेंबर में, ग्रुप में वो मिल गया था, घुल मिल गया था। On an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night। रात को क्या करता था ना, जो मुर्गे के जो घर है उसके आजू बाजू चूहे होते हैं। मुर्गा क्या होता है, वो दाना खाता है, वो अनाज को खाने के लिए चूहे आ जाते हैं, तो वो चूहा को ये ट्रिकी मार देता था और खा जाता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। इतने ज़माने में, इतने साल से उसको इस तरह के कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऑल द वाइल मिस पैम्प्री होवर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। ऑल द वाइल मतलब ये समय जो टाइम पीरियड हो रहा था, मिस पैम्प्री क्या हो रहा था, वो घबरा गए थे। हैवर्ड मतलब एक ही वस्तु में एक ही जगह खोए हुए रहते थे। एंसियसली नर्वस होके, इन द बैकग्राउंड बार बार फ़ोन कर रहे थे। रिंगिंग ए डजन टाइम्स, 12 बार 13 बार दिन में कॉल कर रहे थे। ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। बुलेटिन मीन्स न्यूज़, क्या हुआ, ट्रिकी का मतलब सुधारा हुआ, कितना % सुधारा हुआ, खा रहा है या नहीं, सही है या नहीं, इस तरह से वो जानकारी लेते थे। I dodged the question about whether his cushion were being turned regularly or his correct coat on according to the weather। I dodged मतलब यहाँ मिस पैम्प्री, द क्वेश्चन बार बार पूछते थे, डॉडेड मतलब पूछना, द क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसके क्वेश्चन जो उसके क्वेश्चन क्या था उनका ना, उसके क्वेश्चन बार बार आप चेंज कर रहे हो क्या रेगुलरली। उसको वेदर के हिसाब से कपड़ा पहना था, हम पहले ही पढ़े ना, उसके पास बहुत सारा कपड़ा था। विंटर कलेक्शन अलग था, समर कलेक्शन अलग था, रेनी कलेक्शन अलग था, इस हिसाब से नाइट वेयर था, तो इस हिसाब से आप पहनाते हो क्या उसे ठंडी तो नहीं लग गई, उसे गर्मी तो नहीं हो रही, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन मिसेस पैम्प्री पूछते थे।
But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convincing rapidly. लेकिन मैं उनको एक ही वस्तु बोलता था कि जो लिटिल फेलो है वो अभी आउट ऑफ डेंजर है, उसको अभी कोई डेंजर नहीं है। एंड कन्विंसली रैपिडली मतलब धीरे धीरे वो अपने सेहत में रिकवरी ला रहा है। द वर्ड कन्विंसलिंग seems to do something to Mrs. Pampley. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time. Mrs. Pampley 2 डजन एग लाते थे टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो 2 डजन एग लाते थे। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर आई हैड 2 eggs each for breakfast. On the breakfast they are taking 2 eggs. But when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. ना ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पसंद था वाइन पीना, ओके और वो क्या करता था, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड के लिए ये बहुत अच्छा था, इसलिए वो बहुत पसंद करता था। द लंच बिकम ए सेरेमनियल occasion with 2 glasses of wine before and several during the meals. ना खाना खाने से पहले 2 ग्लास वाइन वो पीते थे दोनों, और खाना खाने के समय जो जितने पीरियड वो खाना खाते थे उतने समय के अंदर मैनी ग्लासेस मतलब सेवरल ड्यूरिंग द मील, बहुत सारे ग्लासेस लेते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. Now, brandy means it is nothing but a type of alcoholic juice. Okay, it is nothing but a fermented grapefruit juice or anything else, any type of fruit fermented juice. So that is called as brandy. And constitution, the composition of something. They are adding something, they are adding it may be food में वो लोग ऐड कर रहे थे, it may be वो कुछ जूस में ऐड करके देते थे ट्रिकी को, और ट्रिकी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, ट्रिकी फटाफट ख़त्म भी कर देता था। There were days of deep content starting well with the extra egg in the morning. इसके बाद वो क्या क्या एक्स्ट्रा एग भी उसे देते थे, improved and sustained by the midi wine and finishing luxurious round the fire with the brandy. brandy पी के मतलब वाइन पी के और 2 ब्रेकफास्ट में तो 2 एग खाते थे, उसके साथ और एक एक्स्ट्रा एग खा के फायर के चारों बाजू घूम के एंजॉय करता था ट्रिकी। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को टेम्पटेशन मीन्स इच्छा, अपने डिज़ायर इच्छा, टू कीप ट्रिकी ऑन एन परमानेंट गेस्ट। मिसेस पैम्प्रे का बहुत इच्छा था कि वो ही चाहते थे, इच्छा क्या वो ही चाहते थे कि ट्रिकी मेरा एक गेस्ट है, उसको गेस्ट जैसे ट्रीट करते थे और बहुत केयर लेते थे उसका ट्रिकी का। बट आई न्यू मिसेस पैम्प्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, मुझे बताए, यहाँ आई न्यू मीन्स मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं कि मुझे पता है मिस पैम्प्रे वॉज सफरिंग, मिस पैम्प्रे अभी तकलीफ में है, क्यों 15 दिन से ट्रिकी को नहीं देखे इसीलिए। Felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Compelled ना मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन फोर्सफुली उनको कॉल करके ऐसे बोलूँ कि अभी लिटिल डॉग है वो रिकवरी हो गया है और आपको अवेटिंग मतलब आपका इंतज़ार कर रहा है, आप उसे कब यहाँ से ले जा रहे हो। गुड न्यूज़ मिस्टर हैरियट मिसेस पैम्प्रे को देना चाहते थे। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. विदिन मिनट वो फ़ोन करने के कुछ समय के अंदर 30 उनके सर्जरी रूम से 30 feet दूर में एक ग्लैमिंग ब्लैक मेटल मीन्स जो चमकता हुआ रिफ्लेक्ट लाइट, ग्लैमिंग मतलब चमकना, ब्लैक मेटल कार आके खड़ा रहा। द शेफर्स ओपन द डोर, यहाँ शेफर्स मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड और ड्राइवर, प्राइवेट ड्राइवर हो या जो कार वो हायर किए होंगे वो आया। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस पैम्प्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। वो खो गए थे अपने आप से, मिसेस पैम्प्री खो गए थे। वो बार बार उनके मन में एक ही प्रश्न आता होगा कि ट्रिकी सही है या नहीं, क्यों इस तरह से कॉल आया,
वो सही है या नहीं, उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया क्या। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे। मिसेस पैम्फ्री अपने सोच में ही खो गए थे। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर। क्लैप्स मीन्स टाइटली वो अपने हाथ को कवर कर दिए थे, ऐसे मुट्ठी कर दिए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनको ओट वाइब्रेट हो रहा था, ओके, सेक हो रहा था, सेक इन्वेंटली, और ही इज लिटिल बिट एक्साइटमेंट, और ही इज लिटिल बिट एंसिस्ट। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। जैसे ही मिसेस पैम्फ्री मिस्टर हैरियट को देखे बोले, ओ मिस्टर हैरियट, हम लोग जैसे किसी को देखते हैं, ओ मिस्टर समथिंग लाइक दैट, डू टेल मी द ट्रूथ, आप मुझे सच्चाई बोलो, इज ही रियली बेटर, वो सही में अच्छा है। एट दैट टाइम मिस्टर हैरियट वॉज आंसरिंग, यस ही वॉज फाइन, हाँ वो सही है अभी। There was no need for you to get out the car. Get out of the car means आप कार से नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं। I will go and fetch him. मैं जा रहा हूँ और उसको लेके वापस आ रहा हूँ। Fetch मतलब bring back. मैं वापस लेके आऊँगा। I walked through the house into the garden. मैं घर के अंदर गया। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn. लॉन में, गार्डन में मैस और मतलब बहुत सारे डॉग, हैटलिंग मतलब आवाज़ कर रहे थे, घूम रहे थे, भौंक रहे थे, बहुत स्पीड में दौड़ रहे थे। एंड इन देयर मिडेस्ट मतलब बीच में, मिडिल में, ईयर्स फ्लैपिंग टेल वैविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। कान का खड़ा करके टेल को धीरे धीरे हिला के बीच में गोल्डन मतलब ब्राउन कलर के ट्रिकी बैठा हुआ था। In 2 weeks, he had been transferred into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bound, his chest almost brushing the ground. Now, within 2 weeks, 2 वीक में वो क्या हुआ था, ऑलरेडी बहुत फैट था, फैटी हो गया था, बहुत हेल्दी हो गया था। अभी लिथी मीन्स पतले, थिन और ग्रेसफुल, देखने में अच्छा लग रहा था। मसल सब उसका टाइट हो गया था और वो थोड़ा स्ट्रेच हो गया था और वो थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा था। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house. मैं उसको बैक साइड से फ्रंट ऑफ द हाउस कैरी करके लाया, उठा के लाया। द शेफर्स वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। शेफर्स मतलब जो नौकर था या जो ड्राइवर था वो तब भी होल्ड किया था, पकड़ा हुआ था कार के डोर को, ओपन ही रखे थे कार को, डोर को। When Tricky saw his mysterious, जब ट्रिकी अपने मालिक को देखी, he took off from my arms in a tremendous leap. took off मतलब जंप करने लगा, from my arms मेरे हाथ से एक मतलब कूदका ऐसे मारा, and sailed into Mrs. Pampry's lap, सीधा जाके मिसेस पैम्प्री अपने ओनर मिसेस पैम्प्री उनके गोदी में जाके बैठ गया। She gave a startled oh, वो देख के फीलिंग शॉक हो गए, सडनली वो देख के शॉक हो गया, अलर्ट। कौन? सी मतलब यहाँ मिसेस पैम्प्री। ओ एंड देन हैड टू डिफाइन herself as he swarmed over her, licking her face and barking herself as a swarmed मतलब इधर मूव करने लगा, रेपिडली बहुत फास्टली, बहुत बार कंटिन्यूसली, बहुत बार वो उनके गोदी में मूव करने लगा, उनके आजू बाजू मूव करने लगा, फिर उनको चाटने लगा, लिकिंग LICKING, लिकिंग हेयर फेस मतलब उनके मुंह को, हाथ को, बॉडी को चाटने लगा और चाट के भोंक रहा था और वो ऐसे जताना चाहता था कि मैं आपको बहुत मिस किया, ये 15 दिन, ये जो 2 वीक आपसे दूर रहा, मैं आपको बहुत मिस किया और मैं अभी सही हूँ। और उसके जो इमोशन, जो प्यार है, दोनों जो एक दूसरे को मिसिंग कर रहे थे वो वहाँ पता चलता था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट I helped the shippers to bring out the bed, toys, cushions, coat and bowls, none of which had been used. During the excitement, जब एक तरह के माँ बेटे के रिलेशन वहाँ चल रहा था, मिसेस पैम्प्री एंड ट्रिकी जब एक्साइटमेंट था उनके अंदर, 15 दिन से वो एक दूसरे से दूर थे, उनके अंदर जब लाड़ प्यार हो रहा था, मिसिंग वाला कन्वर्सेशन हो रहा था, एट दैट टाइम जोसेफस जो नौकर था, जो सर्वेंट था, उसके साथ मैं मतलब यहाँ मिस्टर हैरियट मिलकर क्या किए, ट्रिकी के बेड, ट्रिकी के टॉय, कुशन, कोट, बाउल सब कार में रखवा दिए। वो एक लाइन वहाँ बोल रहे, नन ऑफ
none of which had been used. इनमें से कोई एक भी वस्तु यूज नहीं हुआ है. As the car moved away, जैसे कार मूव होने था तब मिस पैम्फ्रे leaned out of the window, विंडो से झाँक के, विंडो से बाहर झाँक के उनके आंखों में तब भी आंसू था. टीयर्स शोन इन हर आईज, वो जो आंसू था वो एक चमक था आंसू में, एक खुशी था आंसू में. पहले भी वो रो रहे थे जब ट्रिकी को जब हॉस्पिटल ला रहे थे तब वो चिल्ला के दुख के कारण रो रहे थे. बट अभी इस समय सोन मीन्स इट इज़ ए क्वालिटी आइज और क्वालिटी टीयर्स. हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके ओठ हिल रही थी, मतलब वाइब्रेशन था. ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, मिस्टर हैरियट बोल के वो रोने लगे. हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मिस्टर हैरियट मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ. दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ना ये सर्जरी के बगैर जीत हुई. ट्रम्प TRIUMPH, ट्रम्प मतलब विक्ट्री ऑफ सर्जरी, ना हम सर्जरी से भी जीत गए. ये इसके कहानी का अर्थ है. बहुत बार एग्जाम में क्या आता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपको याद नहीं मतलब आप बायहार्ट नहीं कियोगे या आप याद नहीं रखोगे. तो मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बायहार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं. आप इसके समरी जान लीजिए. मैं पूरा स्टोरी को आपको समझाई अच्छे से. अब मैं यहाँ इसके बाद आपको समरी और इंट्रोडक्शन इंडिविजुअली लिखी हूँ, आप इसको एक बार रीड कर दीजिए. आपको इधर CBSE के हो या गुजरात स्टेट बोर्ड के हो, आपको ये आगे काम आएगा. समरी से भी आप आंसर दे सकते हैं. देखिए मैं आपके आगे समरी लिखी हूँ. मैं जो अभी फुल स्लाइड में पूरा PPT में मैं जो आपको डिफाइन की, जो समझाने की कोशिश की, वही चीज़ मैं यहाँ लिखी हूँ. आप एक बार थरोली इसे पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा. इंट्रोडक्शन. दिस स्टोरी हैज़ बीन written by James Herriot. The subject of this story is a pet dog which is spoiled by its owner. The owner indulges her dogs so much with food and other comforts that the dog has become overweight and can't even walk properly. Finally, the dog has been taken to a veterinary doctor who treats the dog without using a single medicine. The dog was left with all other dogs so that it can play and get the much needed physical exercise. After a period of enough physical activity, the dog loses much of its weight and becomes hale and hearty. Apparently, this is a simple story with simple subject, but if we try to read between the words, the story was or has much significance for our life as well. You will see many kids who are overweight and spoiled because their parents just try to meet every demand of the kid. The kid develops into a coach potato which is not good for his life. The last two, अभी ये जो स्लाइड में जो द लास्ट 2 पॉइंट मैं हमारे लाइफ के साथ वो मिसेस पैम्फ्रे और ट्रिकी के लाइफ को कंपेयर की हूँ. तो ये एग्ज़ाम में आपको एक अच्छा मार्क्स देगा, अच्छा बिल्डअप देगा, इसीलिए इसको आप पढ़ लेना. नेक्स्ट की पॉइंट्स. ट्रिकी वॉज a small dog and was excessively loved by his mistress Miss Pamphret. He was greedy and loved food but no exercise. He does not like to do any type of exercise. As a result, he became fat and Mrs. Pamphret believed that he became lazy because he suffered from malnutrition. Mrs. Pamphret was a wealthy woman. She loved her dog too much. She gave him some little extra between meals to build him up malt, cod liver oil and bowl of Horlicks at night. She gave him lot of eat but no exercise. Once he became ill, she was worried and made a frantic call to Harriet, who was a vet. James already had given suggestion regarding Tricky's balanced diet, but she never followed it. He was a vet. He was shocked to see Tricky's hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. He advised her to cut down on the sweet thing. He expected call came within a few days and it happened.
He was called by Miss Pampley as Tricky refused to eat. He told her that Tricky needed immediately hospitalization for keeping under observation at his surgery for a fortnight. Then he gave him no food, no medicine, but plenty of water for 2 days. Gradually, he mixed with the other dogs and started playing with them. He had a lot of exercise and fun at the surgery. He was completely recovered and transformed into a hard muscles dog. James Harriet treated the dog without medicine or surgery. She was happy and filled with gratitude. She thanked Harriet and said it was a trump of surgery. Means without doing any surgery, he was the victory of the illness. Summary. Mrs. Pampley was a rich and emotional lady who has cute pet called Tricky. She loved him so much that she overfed him. Tricky had put on a lot of weight which made him lethargic. When Dr. Harriet saw the fat dog like bloated sausage, he was shocked. He made a plan and told Mrs. Pampley that Tricky needed treatment for alignment which was possible only in hospital. The doctor knew that Mrs. Pampley would not be able to keep the dog on a proper diet. When the greedy dog went to the hospital, he had to remain hungry if he was slow to approach for food. He was given food at fixed intervals. Soon he shaved off a lot of his body weight and became quite active. When Tricky was at home, he was pampered by Miss Pampley. He had a luxurious life when he was served with cream, cake, chocolate and Horlicks. But when he came to the doctor, he became all right. When Mrs. Pampley saw her active dog, she thanked the doctor and felt that it was the triumph of surgery. Who is Mrs. Pampley? She was a wealthy woman. She loved her dog so much. She gave him some little extra between meals to build him up, malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night. She gave him lot of eat but no exercise. Once he became ill, she was worried and made a frantic call to Harriet, who was a veterinary. James already gave suggestions regarding Tricky balanced diet, but she never followed it. हमेशा डॉक्टर बोलते थे but he never followed it. Who is James Harriet or who is the veterinary? James Harriet was a veterinary. He was shocked to see usually fat like a bloated sausage with a leg at each corner. He already advised her to cut on the sweet things. He expected call came within a few days and it was happened. He was called by Miss Pampley as Tricky refused to eat. He told her that Tricky needed immediately hospitalization for keeping under observation at his surgery a fortnight. There he gave him no food, no medicine, but plenty of water. Gradually he mixed with other dogs and started playing with him. He had a lot of exercise and fun at the surgery. Dog's recovery is a trump of surgery. He was completely recovered and transferred into a hard muscle dog. James Harriet treated the dog without medicine of surgery. She was happy and filled with gratitude. She thanked Harriet and said it was a trump of surgery. Surgery se jeet. Who is Tricky? Tricky was a small dog and was excessively loved by his mistress, Miss Pampley. He was greedy and loved food but no exercise. As a result, he became fat. Miss Pampley believed that he became lazy because he suffered from malnutrition. My dear friends, really thanks to you, but prepare for board exam. All the best. Always God bless you. Thank you.